Hello everyone, in this video we'll discuss one of the most celebrated poems of Matthew Arnold, the title of which is Dover Beach. Dover Beach is a lyric poem and it was first published in 1867 in the collection New Poems. Now let's come to the title Dover Beach. We all know that beach is seaside or ocean side, and this Dover is a place in England. Dover is in Kent. This Dover is in Kent. So this Dover Beach is the English ferry port of Dover in Kent, and it faces the beach of France that's called Calais at the Strait of Dover. So you see this way that there is sea, and one side it's Dover Beach of England and other side is the beach of Calais in France, and this is the narrowest part, 21 miles, that is 34 kilometers or 21 miles of English Channel. So what happens जब सी जो है वो एक साइड और दूसरे साइड अनदर कंट्री है, तो कभी सी जो है बिल्कुल नैरो हो जाती है. तो ये जो बीच है डोवर बीच का, यहाँ पर सी जो है इस नैरोवेस्ट किसके बीच में, फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में. Here Matthew Arnold spent his honeymoon in 1851. 1851 में when he got married with Frances Lucy, he had married with Frances Lucy. So he went to honeymoon at this place in 1851 and he wrote this poem, but it was published in 1867. Now because there is a reference of the beach, so we must know what kind of beach is this. So many of the beaches in this part of England, in the Dover part of England, is made of small stones or pebble. So the seaside is small stone and pebble rather than sand. सैंड की जगह पे क्या है, स्टोन एंड पीबल. तो यहाँ पे पोएम में है जहाँ पर देर इज सी इज इबिंग, सी इज कमिंग एंड गोइंग ओवर द स्टोन्स क्रिएट अ ग्रेटिंग रोर. तो ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, ग्राइंडिंग, पिसने वाला. रोर के बारे में बात की है. तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम इटसेल्फ. द पोएम डोवर बीच starts with the description of the sea. This poem is a dramatic monologue. It's a dramatic monologue. In this poem, the speaker is Matthew Arnold himself, and the second person in this poem is his wife Frances Lucy. So he is addressing to Frances Lucy. He is standing on the window of one of the hotel in which he is staying. इसका बैकग्राउंड ये है कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो है हनीमून पे गए हैं 1851 में, और वो बीच के किसी होटल की खिड़की पे खड़े हैं और रात हो गई है, और वो अपनी वाइफ फ्रांसिस लूसी को एड्रेस कर रहे हैं और उसको बोलते हैं. एंड ही सेज टू हर, क्या बोलते हैं, द सी इज काम टुनाइट. टुनाइट द सी इज काम, सी शांत है, बट द टाइड इज फुल, लहरें काफ़ी हैं. मून लाइज फेयर, मून इज ऑल्सो देयर अपॉन द स्ट्रेट्स. स्ट्रेट्स मीन्स ये जो पानी है ये हो गया स्ट्रेट, और इसके ऊपर मून जो है वहाँ पर है. तो जब आप दूर से देखते हैं, व्हेन यू सी फ्रॉम द फार, सो इट सीम्स दैट मून लाइज ऑन द वेव्स. सो दैट्स द थिंग, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट. ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फ्रेंच का जो साइड है, कैलस वाला जो साइड है, द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन. लाइट अभी जो है जा चुकी है. द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड. इंग्लैंड के क्लिफ जो है अभी भी ऐसे ही स्टैंड कर रहे हैं, ग्लिमरिंग एंड वास्ट. It's glimmering and it's vast. So it may be the reference that French once was more powerful than England, but by this time England was being more powerful around the world. So cliff of England stand and glimmering and vast on the tranquil bay. Tranquil means शांत, calm bay. अब वो अपनी वाइफ फ्रांसिस लूसी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि come to the window, sweet is the night here. He is calling his wife to the window and he says that the night here is calm, you come to the window. And then again later he says only from the long line of spray. Spray is foam. तो what's spray here? जब लहरें जब आती है
और किनारे मिलती है तो झाग में ऐसा वाइट वाइट कलर का फॉर्म निकल जैसा बन जाता है। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पूरी नाइट एयर जो है स्वीट है, बे कैसा है, ट्रैंक्विल है, शांत है। सिर्फ आवाज़ कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ द स्प्रे वेयर सी, जहाँ पे समुद्र मिल रहा है, मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। तो यहाँ पर एक वर्ड है मून ब्लांच लैंड। तो लैंड जो है वो तो नॉर्मल ही होगा, और मून का जब रेस पे आ रहा है तो दैट्स सिल्वरी रेज, तो इसके कारण लैंड जो है, यहाँ का सैंड जो है वो क्या हो गया है, मून के कलर से अफेक्टेड हो गया। तो इसलिए मून ब्लांच लैंड ये बोलते हैं। जहाँ पर सी मिलती है मून ब्लांच लैंड से, मतलब समुद्र का किनारा, ये बोलते हैं कि सिर्फ आवाज़, पूरा बे जो है ट्रैंक्विल है, सिर्फ आवाज़ कहाँ पर है? जहाँ पर समुद्र मिलता है लैंड से। कैसा लैंड? मून ब्लांच लैंड से। बोलते हैं लिसन, वहाँ पर सुनो। हर जगह शांत है, लेकिन जहाँ समुद्र जो है ज़मीन से मिल रही है वहाँ पर सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब होता है ग्राइंडिंग, पिसने वाला, रोर, शोर, नॉइज ऑफ पीबल्स, पीबल्स इज कंकड़, स्टोन्स। तो तुम स्टोन का नॉइस वहाँ पे सुनोगी, विच द वेव्स ड्रू बैक एंड फ्लिंग, जो वेव्स अपने साथ पीछे ले जाती है और वापस आते समय फेंक देती है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन देयर आर सी वेव्स, तो वेव्स कम एंड गो। सो समुद्र के किनारे जो पिबल्स हैं, वट एवर द पिबल्स आर देयर एट द सी शोर, सो व्हेन द वेव कम्स it takes the pebbles along with it, and when the waves comes back it flunks it back। तो जब वेव आती है तो पिबल्स, जो समुद्र के किनारे पे पिबल्स है, उसको अपने साथ लेकर के चली जाती है, और जब वापस से वेव आती है तो उसको वापस से पिबल को फेंक देती है। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पीबल्स, तुम्हें पीबल्स का ग्रेटिंग, पिसने वाला रोर सुनाई देगा। विच द वेव्स ड्रू बैक, जो वेव्स अपने साथ ले जाती है, एंड फ्लिंग्स एट देयर रिटर्न, रिटर्न होती तो फ्लिंग कर देती अप द हाई स्ट्रैंड, और ऊपर जाकर फ्लिंग कर देती है। बिगन एंड सीज एंड देन बिगन, ये चलता रहता है, लहरें आती है जाती है, पीबल को ले जाती है, वापस फेंक देती है। कैसे? विद द ट्रेमुलस कैडेंस स्लो, विद द ट्रेमुलस कैडेंस। तो ट्रेमुलस का मतलब होता है शेकी, क्विवरिंग। तो जब वेव्स आती है तो शांत तो नहीं आती, क्विवर करते हुए आती है। और कैडेंस का मतलब होता है राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। तो कैडेंस का मतलब हो गया साउंड। तो किस साउंड के साथ? ट्रेमुलस, शेकिंग साउंड के साथ ये पीबल को ले जाती है, वापस ले आती है। एंड ब्रिंग इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, एंड poet feels that in this noise of the sea there is eternal note of sadness. So here the point to note is Matthew Arnold is not listening the note of happiness in the sound of the grating roar of the waves. He is listening the eternal noise of sadness. तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है कि जैसे वेव्स जो है वो पत्थर को पिस रही है, वैसे ही लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग को ग्राइंड कर रही है। लाइफ, द प्रोसेस ऑफ द लाइफ, दैट एवरी डे स्टार्ट्स एंड एवरी डे गोज, सो दैट वे द लाइफ ग्राइंड अस सेम एज द वेव ग्राइंड द पीबल्स। नाउ ही क्लेम्स दैट ही इज नॉट द ओनली वन टू लिसन दिस सैडनेस. He claims that Sophocles was the Greek playwright, dramatist of 5th century. It is said that he wrote around 120 plays, but now only 7 of his play survives. So he says that Sophocles, उन्होंने अभी नहीं सुना है, 5th century BC में, मतलब 2000 से ज़्यादा साल पहले, सोफोक्लीज लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन एगियन। उन्होंने, सोफोक्लीज ने ये एगियन सी पे ये सेम नोट सुना और उसने भी इस सैडनेस को फील किया। तो एगियन सी जो है ये एलोंगेटेड एम्बेमेंट है ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ती है। तो यहाँ पे इसका मानना है कि सोफोक्लीज जो है हर्ड इट ऑन एगियन एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड, और सोफोक्लीज के भी दिमाग में ये आवाज सुनकर क्या आया था? द टर्बिड इब एंड फ्लो, अनक्लियर इब एंड फ्लो। इब एंड फ्लो मीन्स कमिंग एंड गोइंग. इब एंड फ्लो इज अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ कमिंग एंड गोइंग और डिक्लाइन और रीग्रोथ. तो ये बोलते हैं कि ये जो इब एंड फ्लो है, टर्बिड इब एंड फ्लो है, किसका? ह्यूमन मिजरी का. दैट ह्यूमन मिजरी इज नॉट कंसिस्टेंट, इट इज अनक्लियर, इट कम्स एंड गोज. तो ये सोफोक्लीज ने भी एगियन सी पर सुना था, जैसा कि वो मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो डोवर बीच पर रोर, ग्रेटिंग रोर ऑफ पिबल्स के थ्रू सुन रहे हैं. वी
फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, और इस साउंड में एक थॉट सुनाई दे रहा है, हियरिंग इट बाय द डिस्टेंट नॉर्दर्न सी. Now let's come to the next stage, next stanza. In this stanza, poet claims, here we come the clear theme of this poem. The theme of the poem is the loss of Christian faith in England. This was a time when the Origin of Species that was published in 1859 had already appeared. There was new advancement in sciences. There was a textual study of Bible, and the old faith was being questioned. There was always question, like when the textual study of the Bible started, or the scientific development started. So according to biblical theory, there was Platonic theory that the earth is in center and other planets revolve around it. कि Platonic theory के हिसाब से अर्थ जो है वो सेंटर है और बाकी प्लैनेट जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ तो पता चला नहीं, अर्थ इज नॉट इन द सेंटर, see the sun is in the center. तो when one thing is question, another thing is also question. So एक sea of faith जो था, एक certitude जो था, लोग मानते थे कि जो बोला गया है religiously वही सही है, तो इस पे लोग question करने लगे. There was a reasoning, there was along with reasoning there was doubt. If there is doubt, there is reasoning. तो यहाँ पर ये claim करते हैं कि sea of faith जो है एक समय confirm था पूरे अर्थ के चारों ओर, लोग सर्टेन थे चीज़ों को लेकर के, लेकिन अभी जो है सब कुछ कंफ्यूज्ड स्टेट में चल रहा है. तो अब ये बोलते हैं द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड द अर्थ सोर, पूरे अर्थ के किनारे ले फेथ कैसे था, लाइक द, देयर इज सिमिली, लाइक से कंपेयर किया है, लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गर्डल. गर्डल का मतलब क्या होता है, वेस्ट बैंड. वेस्ट बैंड, वेस्ट में बैंड पहनते हैं मतलब बेल्ट. तो आप वेस्ट बैंड पहनते हैं जब, तो वो पूरे वेस्ट को ऐसे सर्कल करता है. तो वैसे ही बोले सी भी जो है पूरे अर्थ, फेथ भी जो है ये पूरे अर्थ को सर्कल कर रही थी. एक समय था जब फेथ जो है किसी वेस्ट बैंड की तरह पूरे अर्थ के चारों ओर था. द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ सो like the folds of bright girdle furled, but now I only hear. अब मैं क्या सुनता हूँ, इट्स melancholy long withdrawing roar. मैं फेथ का विड्रोविंग रोर सुनता हूँ कि फेथ जो है विड्रॉ कर रहा है और ये melancholic है. Retreating to the breath of the night wind down the vast ages drear means sad and naked sangles of the world. और क्या सुनता हूँ कि breath of the night wind सुनता हूँ, और क्या देखता हूँ कि naked sangles of the world. sangles का मतलब होता है कांटे. सैंगल्स जो ऐसे ऐसे कुछ खुरदरा निकला हो तो हम बोलते हैं शैंगल्स. तो बस ये बोल रहे हैं कि अब फेथ बचा नहीं है एंड देयर इज ओनली द विड्रोविंग रोर ऑफ फेथ. सो ही इन दिस रिट्रीटिंग ऑफ द वेव का जो रिट्रीटिंग साउंड है, नाइट विंड है, उसमें वो क्या सुनते हैं, वास्ट एजेस डियरर एंड नेकेड सैंगल्स ऑफ द world. Now let's come to the last stanza. So now we have already discussed that he was on his honeymoon and he was discussing with his wife Frances Lucy. So now he says his wife, oh love. So his love, his wife, he says to his wife, oh our love, let us be true to one another. चलो हम एक दूसरे से कम ट्रू होते हैं. For the world, ये पूरी दुनिया, which seems to lie before us like a band of dreams. ये दुनिया जो हमारे सामने कैसी है, लाइक अ लैंड ऑफ, आई सेड बैंड, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स. ये दुनिया जो लैंड ऑफ ड्रीम की तरह है, जो हमारे सामने है, दैट सीम्स सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू, जो बहुत वेरियस नज़र आ रही है, बहुत डिफरेंट नज़र आती है, बहुत वैरायटी वाली नज़र आती है, इतनी खूबसूरत, इतनी न्यू नज़र आती है. हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट. इसमें, इस दुनिया में ना ही प्यार है, ना लव है, ना लाइट है, नॉर सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड मीन्स सर्टेनिटी, किसी भी बात की सर्टेनिटी नहीं है. नॉर पीस, नॉर हेल्प फॉर पेन, ना ही हेल्प है किसी पेन के लिए. तो ये बोलते हैं कि दुनिया, ये बोलते हैं लव, फ्रांसिस ल्यूसी, हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्रू होते हैं, क्योंकि दुनिया जो एक लैंड ऑफ ड्रीम की तरह हमारे सामने है, दैट सीम्स, दैट लाइज बिफोर अस लाइक द लैंड ऑफ ड्रीम एंड सीम्स सो ब्यूटिफुल, सो वेरियस, सो न्यू. एक्चुअली इट हैज़ नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टेनिटी नॉर पीस नॉर एनी हेल्प फॉर द पेन. And he says that we are here as on the darkling plane. We are on the dark plane. हम अंधेरी दुनिया में हैं. Swept with the confused
alarms of struggle. The whole world is swept with the confused alarm of struggle and flight. Everybody is in a struggle, everybody is in flight, everybody is in hurry. Here, the ignorant army clash by night. Here, the armies are clashing and fighting by night. So, there is in this world, in short, he says on his honeymoon, he is saying to his wife, Frances Lucy, that Frances Lucy, in this world, there is no certainty. So, let's be true to one another, because the sea of faith that was around the earth's girdle, like earth's shore, like the girdle, is now retreating. Now earth is losing its faith, and he claims that he is listening the same sadness, the sadness on the Dover beach when the waves are clashing to the beach, and he claims that he heard the same. He is not the only one to listen this misery, listen this sadness. Ages ago, Sophocles also heard it on the beach of Aegean. So this is a poem, Dover Beach. Keep reading. Thank you.